11:10 से होता है। अच्छा ठीक। Okay, so let us start. Okay, I'm sorry. So today is the new topic. Okay, and this topic is very important. This is your this comes under again comes under your traffic engineering. Okay, and we will learn today the third control device. What was the third control device? We have already learned about the sign, marking, and all this thing. Okay, and we have also learned about the intersection where we will put those this third control device, traffic control device. Okay, so the third control device is your traffic signal. Okay, and basically these Yes, are ma'am. placed at this type of signals are installed at the which type of intersection? At the at grade intersection. Okay, that means where the number of roads which are intersecting each other will be at the same level. Okay, so the funda that we are using in this method is what? In this traffic control device or in the signal control device is the your time sharing. Okay, we are controlling the traffic by sharing the time. So here since time we are sharing, so here we need to design the time parameter. Okay, in the signal design means what? Again we need to design some parameter. So here also we need to design a parameter, and in the signal what kind of parameter we have to design or calculate? The time. Okay, time means in signal when you enter a signal what happens? There you will see some red color signal, then amber, then green. Okay, so basically those are for the time duration when these intervals are shown as a signal. Okay, so we have to design those time intervals. Okay, what for how much time you will see the red signal, you will face or you will face green signal. That is the design we have to do in the traffic signal. Okay, so basically before going into the details or going starting the procedure, there are several procedure. Okay, to design this signal. So mainly there are three types, which is your trial cycle method, second one is your Webster's method, and the third is the IRC code method. Okay, IRC we have to follow IRC guideline, but as per the syllabus this first two method is important for you, that is trial cycle and the Webster method. Okay, so in signal what we have to do? See, these are, you can see green, red, and all this thing. Okay, so we have to design this signal only. Okay, and also there before going into the details we need to learn some parameters about the signal. So see here, this is an example of the add grade signal. Basically your signals are provided in this kind of intersection where the two or the more than two road which are intersecting each other will be at the same level. Okay, time sharing means what? See, some of the vehicles are at the stop condition and some while whereas in that time, in that duration, other vehicles are getting the green signal. Okay, so in that following that basis only what we are doing, we are separating the time for the traffics. Okay, and this is the grade separated intersection. Okay, so here basically you cannot see the signals. We will face signal only in this kind of intersection. Okay, this is called the add grade and this is the grade separated intersection. Here which funda we are following? We are following the space sharing, and here we are following the time sharing. Okay, so the topic that we will learn today is what? What are the advantages of the traffic signal? Disadvantage also. There will be some disadvantage also, obviously, right? And some important terminologies. While designing or while following the procedure, we will face some terms. We have to know some terms. Okay, so that we have to our funda or the basics should be clear regarding those terminologies. So we will learn those things first. Then we will go to the trial cycle method. Okay, procedure of the trial cycle method, and based on it we will try to solve one numerical. Okay, so advantages. Acha, tell me one, at least one advantage of the traffic signal. Anyone? Suppose there is a road intersection is there. There are two types of road intersections are there. Okay, at the one you are some signals are provided installed, and at the another intersection there is nothing, that is uncontrolled. Okay, so what kind of advantage do you will face in case of signalized intersection?
कंपेयर टू द अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन? क्या एडवांटेज तुमको मिलेगा इस वाले में, फर्स्ट वाले में, जिसमें तुम्हारा सिग्नलाइज्ड रहेगा, सिग्नल इंटरसेक्शन रहेगा? मैम ट्रैफिक जैम होवे ना? ट्रैफिक जैम, यस, we will control, okay, traffic jam we will control, we will have a control over it, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स कमे যেতে পারে। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग का जो मेन मोटिव है वही है कि ये क्रैश, मतलब रिड्यूसिंग द कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स, राइट? अगर अनकंट्रोल Yes. रहता तो हम लोगों ने देखा कितना है, अगर ऐसा टाइप का रोडवे है तो कितना सारा था वहां पे अनकंट्रोल, सॉरी, कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स 32 इंक्लूडिंग द पेडेस्ट्रियन 32 था, और विदाउट पेडेस्ट्रियन इट वाज 24। तो जितना नंबर ऑफ कंफ्लिक्टिंग पॉइंट, मोर इज द चांसेस ऑफ क्रैश, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव सेपरेटेड, हम लोगों ने टाइम को शेयर कर दिया, राइट? देखो ये लोग जब जा रहे हैं, सॉरी, ये लोग जब देखो राइट टर्न जब जा रहा था, लेफ्ट टर्न जब जा रहा था, राइट टर्न, तो ये लोग को यहाँ पे रुकना पड़ रहा था। सो यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग वी हैव रिड्यूस्ड, ओके, कंफ्लिक्ट बिटवीन द राइट टर्न एंड द स्ट्रेट व्हीकल, राइट? सो crashes has been reduced, possibility of crash has been reduced, right? Also क्या होता है कि orderly movement, एक मूवमेंट हम ऑर्डरली हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं कि देखो राइट टर्न के लिए अलग सा होगा, अलग जा सकते हैं वो लोग, ठीक है? एक टाइम में सिर्फ स्ट्रेट व्हीकल जाएगा, एक टाइम में सिर्फ लेफ्ट टर्न जाएगा, ऐसा है, ओके? सो क्रैशेस रिड्यूस हो जाता है। इंटरप्ट्स हेवी फ्लोज फॉर द माइनर रोड, मतलब देखो ये वाला क्या लग रहा है, दिस इज द हेवी फ्लो ट्रैफिक, और ये वाला है तुम्हारा माइनर रोड लग रहा है ना, यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं है इस ये वाले अप्रोच, ये वाला जो रोडवे है इसमें देखो कम ट्रैफिक है, लेकिन ये वाला जो है नॉर्थ साउथ अगर ये है तो इसमें बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं रहता तो क्या होता, सिर्फ ये लोग ही आते रहते, इन लोग को चांस मिलता, जो लोग अगर इस तरफ जाना चाहते तो इन दैट केस दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो इन लोगों को चांस थोड़ा कम ही मिलता, ये लोग ही आते रहते इंटरसेक्शन यूज करते, तो यहाँ पे जो भी था यहाँ पे व्हीकल, इन लोगों को चांस ही नहीं मिलता। सो यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है, राइट? हेवी फ्लो में जो हो रहा है, डायरेक्शन से जो आ रहा है उसको रुकना पड़ रहा है फॉर दी माइनर रोडवे, ओके? रोड मतलब जो माइनर रोड यूज कर रहा है। प्रोमोट्स ड्राइवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम जाए कि ना जाए, ओके? अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं रहता तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमको गैप देखकर जाना पड़ता था, अगर गैप के बीच में और एक व्हीकल आ जाता तो अगेन देयर विल बी द चांस ऑफ एक्सीडेंट, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता अगर अनकंट्रोल रहता तो, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक अलग सा इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो, राइट? जैसे राइट टर्न के लिए अलग से दे दिया, बाकी लोग चुप रहो, तुम लोग खड़े रहो, इसको जाने दो, राइट? तो ये कॉन्फिडेंटली क्रॉस कर दिया रास्ते को। तो ऑल्सो प्रोवाइड्स गैप फॉर दी माइनर, वही बोल रहे थे, माइनर मूवमेंट के लिए गैप्स ये लोग प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अच्छी तरीके से हम लोग का ये डिजाइन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगेन ये हैजर्डस हो जाएगा, कंट्रोल अनकंट्रोल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन, ठीक है? किसको कितना ग्रीन देना, किसको कब देना है, ये सब अगर हम लोग प्रॉपर्ली नहीं करेंगे देन ऐसा केस हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, डिले। देखो एक वजह से, एक व्हीकल या दो व्हीकल की वजह से पूरा एक क्यू फॉर्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये डिले हो जा रहा है, ओके? सो इंक्रीजेस द टोटल डिले। दूसरा क्या है, इंक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन, मतलब ये रुकना पड़ रहा है, फिर जाना पड़ रहा है, फिर रुकना पड़ रहा है, करते करते फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है। अगेन इफ प्रॉपर्ली नॉट डिजाइन, क्रैश भी हो सकता है बहुत भयंकर, ओके? इंक्रीजेस द क्रैशेस, इंड्यूसेस रोड यूजर्स टू लेस एप्रोप्रिएट रूट्स, मतलब कुछ होता है कि यहाँ पे तो सिग्नल है, चलो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम दूसरा रास्ते से जाएंगे जहाँ पे हमको सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि सिग्नल मतलब वहाँ पे हमको खड़ा रहना पड़ेगा, अगेन इट विल मतलब डिले हो जाएगा हम लोग का, राइट? देन व्हाट हैपेंस कि users have a tendency to follow other route जो which may not be appropriate, right? शायद वहां से वो heavy loaded truck नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सिग्नल है, खड़ा रहना पड़ेगा बोल के उसने वहां पे ले लिया टर्न, राइट? तो उसकी वजह से वो इनअप्रोप्रिएट रूट था उस हेवी व्हीकल्स के लिए, बट स्टिल ही हैज टू यूज, उसने यूज कर दिया बिकॉज सामने एक सिग्नल आ रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह ही है, ओके? unnecessary delay if not properly located, again unnecessary delay, इतना लंबा क्यू भी हो जाता है, okay? So these are the disadvantages, okay? Now let us go to the terminology. The first terminology है तुम्हारा approach. Approach मतलब है कि how many legs भी बोल सकते हैं, an intersection has, that is an approach. जैसे यहाँ पे 4 leg intersection इसको बोलते हैं हम लोग, okay?
फोर लेन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 अप्रोच है, 4 अप्रोच, मतलब द रोडवे विच इज कनेक्टिंग और विच इज एंटरिंग इनटू द इंटरसेक्शन, ये वाला रीजन है इंटरसेक्शन, यहाँ से आ रहा है, इसको बोलते हैं अप्रोच, मतलब व्हीकल अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स इंटरसेक्शन, राइट। सो portion of the intersection lane that is used by the traffic approaching the intersection, okay। दूसरा क्या है, मेन, जो मेन तुमको बार बार सुनाई देगा, साइकिल लेंथ, ओके। सो बिफोर गोइंग डिस्क्राइबिंग द साइकिल लेंथ, लेट अस नो व्हाट इज साइकिल। साइकिल का मतलब है, देखो ये ग्रीन हो रहा है, फिर एम्बर, फिर रेड, ठीक है, मतलब सपोज ये कुछ सेकंड के लिए ग्रीन है, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के लिए एम्बर, फिर कुछ सेकंड के लिए रेड हो रहा है, ओके। अगेन ये जब खत्म होगा रेड, फिर से ग्रीन हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब रिपीटेटिव वे में सेम ही चीज हो रहा है बार बार। साइकिल मतलब यही है कि फेनोमेना ऑफ अ साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ अ फेनोमेना, उसको बोलते हैं साइकिल, राइट। मतलब इसका टाइम भी अगर एक ही रहेगा, ग्रीन जितना सेकंड यहाँ पे था, सेकंड साइकिल में भी उतना ही सेकंड ही ग्रीन होगा, उतना ही सेकंड ही एम्बर होगा, उतना सेकंड ही रेड होगा, मतलब ये रिपीटेटिव है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइकिल, और कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज योर साइकिल लेंथ, ओके। मतलब कि अगर हम करेंगे, सपोज यहाँ से तुम्हारा ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, सपोज दिस टाइम से हम लोग ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, ओके। इतना दूर तक तुम्हारा ग्रीन हुआ, ठीक है, फिर इतना दूर तक एम्बर हुआ, फिर उसके बाद रेड हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। सो सपोज तो टोटल टाइम कितना लगा ये पूरा फेनोमेनन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज द साइकिल लेंथ, एंड दिस प्रोसेस इज द साइकिल, और ये जो टाइम कितना लग रहा है दैट इज कॉल्ड द साइकिल लेंथ, ओके। सो साइकिल लेंथ में क्या क्या आता है, ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, रेड टाइम, तो तीनों टाइम को मिलाकर ही एक फुल साइकिल लेंथ होता है, ओके। सो इसको ही बोलते हैं साइकिल लेंथ। देखो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, कुछ टाइम ग्रीन हो गया, टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब कुछ उसके बाद कुछ टाइम के बाद येलो स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद रेड स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट ग्रीन कितना बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। सो 10 बजे यहाँ पे ग्रीन स्टार्ट हुआ, 10 बज के सपोज तुम्हारा 50 सेकेंड के बाद एम्बर स्टार्ट हो गया, 10 बज के आफ्टर 52 सेकेंड रेड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे होगा 10 बज के 80 सेकेंड के बाद फिर से ग्रीन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक ग्रीन से लेकर दूसरे ग्रीन तक का कितना टाइम लगा, दैट इज द साइकिल। क्लियर, एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। तो हाँ, तो हमको अब यही डिजाइन करना है कि साइकिल लेंथ कितना है, हमको यही डिजाइन करना है, ओके। एंड विद इन वन साइकिल लेंथ देयर विल बी ग्रीन, एम्बर, रेड, ठीक है। ये চড়িয়াল মোড়ে যদি ট্রাফিক সিগন্যাল লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি কমিশন কমতে পারে? अच्छा, किसमें किसमें? চড়িয়াল মোড়ে যদি ট্রাফিক সিগন্যাল লাগিয়ে দিই তাহলে কি কমিশন কমতে পারে? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। वहां पे फ्लो कैसा है उसके हिसाब से, और वहां पे तुम्हारा जगह कैसा है उस हिसाब से भी हमको करना है, ओके। हाँ, कुछ हद तक कम सकता है, ठीक है, लेकिन ये जगह ऐसा है कि तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मतलब फिर से वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि दैट इज वेरी कंजेस्टेड एरिया, राइट। फ्लो Yes, के लिए ma'am. भी एक कुछ जगह चाहिए, राइट। तो सिग्नल दे दिया तो और एक डिले, दूसरा टाइप का डिले हो जाता है अब उसमें, ओके। कि कंट्रोल डिले, मतलब वो कंट्रोल डिले हो जाता है कि तुमको वहां पे एक रास्ते को पास करने के लिए दूसरा रास्ते को तो मतलब रखना है, रेड जोन में रखना है, तो तब उस वाले रास्ते से बहुत सारा गाड़ी आता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे वहां पर भी वही डिले होना स्टार्ट करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेज, ठीक है। फेज का मतलब है कि से फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये वाला व्हीकल ये वाला डायरेक्शन से आ रहा है और ये वाला डायरेक्शन से जा रहा है, और एक इस तरफ जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। देखो स्ट्रेट, यहाँ से तुम्हारा सॉरी दिस इज व्हाट, लेफ्ट टर्न, और इधर से भी लेफ्ट टर्न आ रहा है। सो ये साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं ना ये लोग, मतलब इसका भी ग्रीन तभी था, इसका भी ग्रीन उसी टाइम में है, इसका भी ग्रीन उसी टाइम में है, राइट। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा तीनों का ग्रीन टाइम सेम हमने दिया है, ठीक है। सो दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, ओके। सो दीज आर व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रैफिक मूवमेंट
रिसीविंग राइट ऑफ वे, मतलब ग्रीन जो मिला उन लोगों को सिग्नल, रिसीविंग राइट ऑफ वे साइमल्टेनियसली, ओके, दैट इज कॉल्ड द फेज। क्लियर? जैसे ये वाला देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सो दिस इज वन काइंड ऑफ फेज। यस मैम। ओके, सो ये एक टाइप का फेज होगा, ये वाला भी एक टाइप का फेज है, ठीक है। और कभी कभी होता है तो क्या हो जाता है कि तुम्हारा सपोज ये वाला, ये दूसरा फेज स्टार्ट होगा, देखो ये फर्स्ट फेज यहाँ से जा रहा है, आ रहा है, अब ये लोग रुक गए, अब ये दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रेट और लेफ्ट टर्न है, ठीक है। तो दिस आर दी फेज। अब यहाँ पे देखो, फॉर एज पर द सिलेबस तुम लोग को बोला जाएगा टू फेज सिग्नल करो। सिंपल जो है वो है टू फेज सिग्नल, मतलब कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन ड्रॉ करेंगे, say for example this is your intersection, okay। अच्छा थोड़ा रुको, तो ये पेन से नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा दिस इज वन इंटरसेक्शन, ठीक है, तो टू फेज अगर बोलेगा तो कैसा ड्रॉ करना है हम लोग को ड्रॉ करना है कि सपोज नॉर्थ साउथ से एक व्हीकल, मतलब इस तरफ जो मूवमेंट आ रहा है, और साउथ नॉर्थ से ये जो मूवमेंट, इन लोग को हम लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब दे आर हैविंग द राइट ऑफ वे साइमल्टेनियसली, इनको राइट ऑफ वे मिला है साइमल्टेनियसली, ओके। तो ऑब्वियसली दूसरा रोड से क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन लोग को कौन सा सिग्नल मिलेगा तब, इस वाले से और इस वाले से। अगर इन लोग को ग्रीन मिल रहा है, ठीक है, तो तब इन लोग को क्या देना चाहिए हमको, रेड, रेड, राइट। तो दे विल बी इन स्टॉप कंडीशन, राइट, सो दे विल बी इन स्टॉप कंडीशन। तो ये हो गया वन काइंड ऑफ फेज, ठीक है। तो अगर तुमको दो फेज बोला है, तो सपोज ऐसा दो इंटरसेक्शन, मतलब दो रोड का इंटरसेक्शन है, तो वहां पे दिस इज वन फेज, फर्स्ट फेज, ओके। और सेकेंड फेज में क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज में तुम्हारा हो जाएगा सेम, अगर तुम लोग करोगे वही इंटरसेक्शन ही तुम ले लिए हो, ठीक है, वही इंटरसेक्शन में तब सेकेंड फेज में क्या करना है हमको, सेकेंड फेज में हमको इन लोगों को देना है तब राइट ऑफ वे, ठीक है, मतलब इन लोग के लिए तब ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल रहेगा, ओके। वेयर एज दिस व्हीकल्स विल बी एट द स्टॉप कंडीशन, मतलब इन लोग का इस वाले अप्रोच में रेड होगा, इस वाले अप्रोच में रेड होगा, ओके। दिस इज योर सेकेंड फेज, ओके। तो दो फेज हो गया, दिस इज अ सिंपल टू फेज डायग्राम या टू फेज सिग्नलाइज इंटरसेक्शन, ओके। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि राइट टर्न इसके साथ तुम्हारा है, तो सॉरी इसके साथ तुम्हारा लेफ्ट टर्न भी इंक्लूडेड है, इसके साथ लेफ्ट टर्न भी इंक्लूडेड है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी होता है कि तुम्हारा तब क्या हो जाता है, इफ दी नंबर ऑफ राइट टर्न्स, मतलब उस वाले इंटरसेक्शंस में नंबर ऑफ राइट टर्न्स, जो राइट टर्न ले रहा है उसका नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे व्हीकल्स राइट टर्न ले रहे हैं उस इंटरसेक्शन में, तो हम लोग को तब राइट टर्न के लिए सेपरेट एक फेज दे देना पड़ेगा, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तीसरा फेज हम लोग कर देंगे, ओके। वैसे ही तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो, ठीक है, कि हमको कितना सारा फेज देना है ये डिपेंड करता है, बट फॉर एज ऑफ नाउ तुम लोग को सिर्फ दो फेज सिग्नलाइज इंटरसेक्शन ही डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा, जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट टू जो है, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, फेज का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। अब जितना सारा फेज होगा उतना सारा तुम लोग का फेज डायग्राम भी करना पड़ेगा, ओके। फेज डायग्राम का मतलब क्या है, आई विल शो यू। बेसिकली फेज डायग्राम मतलब है कि कितना ग्रीन है, कितना रेड है, कितना एम्बर है, वो हमको डायग्रामेटिकली शो करना पड़ेगा, ओके। डायग्रामेटिकली हमको दिखाना पड़ेगा, दैट इज द फेज डायग्राम, ओके। तो फर्स्ट फेज में कितना ग्रीन, कितना रेड, कितना एम्बर है, सेकेंड फेज में कितना ग्रीन, कितना रेड, कितना एम्बर, ये हमको दिखाना है, ओके, डायग्रामेटिकली। सो अब दूसरा टर्म आता है कि तुम्हारा टर्मिनोलॉजी, दूसरा क्या आता है, ये इंटरवल्स। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, साइकिल टोटल लेंथ कितना है वो भी निकालना है, और ये जो ग्रीन कितना है, एम्बर कितना है, रेड कितना है, वो भी निकालना है। सो दीज आर कॉल्ड इंटरवल्स, ओके। ग्रीन इंटरवल, एम्बर, रेड, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कौन आ रहा था अभी, ओके। लेट अस सी टाइम होगा कि नहीं ये प्रॉब्लम करने के लिए, ओके। तो नाउ, अच्छा ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द
ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द डिजाइन। डिजाइन में हम लोगों ने बोले थे क्या क्या 300 मेथड है, उसमें से फर्स्ट मेथड इज ए ट्रायल साइकिल। देखो नाम से पता है कि क्या करना है हमको क्या करना है, साइकिल लेंथ डिजाइन करना है, और ग्रीन टाइम रेड टाइम वो इंटरवल भी डिजाइन करना है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ ट्रायल एंड इटरेटिव, मतलब ट्रायल एज्यूम करके करके हमको जाना है। ओके, सो first we will do what, we will conduct a engineering survey, traffic engineering survey हम लोग करेंगे। जो भी जिस भी इंटरसेक्शन में तुमको बोलो, ठीक है, चड़ियाल बोलो, तुम्हारा हाजरा मोड़ बोलो, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है वहां पे जाके क्या करोगे, अपना वीडियो कैमरा जो भी है पोस्ट लगा के रख दोगे, कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद लैब में जाओगे, फिर एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट क्या करोगे कि सपोज 4 लेग इंटरसेक्शन है, मतलब 2 रोड का इंटरसेक्शन है, ठीक है। 2 रोड मतलब 4 लेग होगा, राइट। तो 2 रोड के इंटरसेक्शन से तुम काउंट करोगे क्या, कितना व्हीकल्स आ रहा है। ओके, पहले तो दिखाई देगा तुम 24 आवर्स डाटा कलेक्ट किए हो, उस इंटरसेक्शन से कितना व्हीकल्स आ रहा है, 24 आवर्स तुम्हारे पास है। अब क्या करोगे, फिर उस 24 आवर्स में से पीक 1 आवर, ठीक है, पीक आवर कंसिडर करोगे। सपोज 10:11 बहुत सारा व्हीकल आया था, 10:11 मतलब उस बीच में इन दैट 1 आवर ड्यूरेशन इट वाज द पीक आवर टाइम, मतलब बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो हुआ था उस इंटरसेक्शन में, ठीक है। ऑफ दैट पर्टिकुलर पीक आवर टेक एनी 15 मिनट डाटा, ठीक है। अब 1 घंटे में 15 करके 4 ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उसमें से कोई भी एक 15 मिनट का डाटा लोगे तुम, ठीक है। लेकर क्या करोगे, यू विल टेक द काउंट, ठीक है। काउंट करके क्या करना है, रोड 1 से कितना आया, ये वाला नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है N1, और रोड 2 से कितना आया, N2 नंबर ऑफ व्हीकल्स आया है। इज इट क्लियर, ये वाला क्लियर है ना। मतलब कि पीक आवर का 15 मिनट्स में कोई भी पीक आवर 10 बज के लेकर 11 बजे होगा, तो हमने सपोज ले लिया है 10 बज के लेकर 10:15, 10 से 10:15 तक जितना भी व्हीकल आया है फ्रॉम वन रोड दैट इज N1 and from another road that is N2, we have collected the data. Okay, now what we will do, we will assume our cycle length. See, it is what trial cycle, मतलब ट्रायल करना है हमको। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल assume the cycle length, साइकिल मेथड है, तो फर्स्ट वी विल टेक द assumption of what, साइकिल लेंथ, ठीक है। तुम 50 सेकेंड 60 सेकेंड 40 सेकेंड कुछ भी एक पकड़ो सेकेंड में, ओके। तो फर्स्ट ट्रायल के लिए ये सी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, साइकिल लेंथ इतना है, सर इतना पकड़ के चलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स। ये वाला फॉर्मूला है 900/c, कैसे आया, एनी आइडिया। 15 मिनट काउंट लिया है तुमने, 10:15, राइट। ड्यूरिंग दैट मिनट्स यू आर कंडक्टिंग दिस, मतलब ये जो भी प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो 15 मिनट डाटा लेकर ही, ठीक है। तो उस 15 मिनट्स में कितना नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेशन हुआ है, कितना नंबर ऑफ साइकिल रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। अगर एक साइकिल लेंथ है तुम्हारा सी सेकेंड है एक साइकिल लेंथ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेकर कंसीडर करते हैं, ओके। सपोज तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल का सी है सपोज 60 सेकेंड, मतलब टोटल ग्रीन एम्बर रेड मिलाकर टोटल है तुम्हारा कितना 60 सेकेंड, ओके। 60 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 मिनट हम लोग बोल सकते हैं ना, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए लगा इसको 60 सेकेंड, ठीक है। सपोज 10 बजे से हमने स्टार्ट किया, 10 बजे से फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ, 60 सेकेंड लगा, कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा सेकेंड मतलब दूसरा साइकिल कितने बजे से स्टार्ट होगा, अगर 10 बजे से पहला साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो साइकिल कंप्लीट होने के लिए 60 सेकेंड लग रहा है, तो दूसरा वाला साइकिल कितने बजे से स्टार्ट होगा, अब 11 बजे से, हैं 11 बजे से। 60 सेकेंड है ये, 1 मिनट है, ठीक है। सॉरी मैम 10:01, हाँ 10:01 से दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, राइट। वैसे करते करते क्या होगा, सेकेंड साइकिल हो जाएगा नेक्स्ट 60 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 1 मिनट के बाद, मतलब 10:02 के बाद तीसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो वैसे करते करते हम लोग काउंट करते करते जाएंगे, कितना बजे तक, 15 मिनट ड्यूरेशन में कितना बार ये साइकिल रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं करके हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, वो है क्या,
60 सेकेंड कंप्राइजेस 1 साइकिल, राइट? इतना टाइम मिलकर एक Yes, साइकिल कंप्लीट होता है। 1 सेकेंड मिलकर कितना साइकिल कंप्लीट होता है? ऑब्वियसली 1/60 साइकिल्स नंबर। Yes, ma'am. ये नंबर ये है नंबर, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड, ये है सेकेंड टाइम, ओके। तो 60 सेकेंड मिलाकर एक नंबर साइकिल होता है, 1 सेकेंड मिलाकर 1/16 होता है, ठीक है। अब हमको कितना ड्यूरेशन है? 15 मिनट्स है। इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? सेकेंड में। तो क्या करेंगे? 15 इंटू 60 सेकेंड, राइट? सो 15 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना? 900। तो 900 सेकेंड में कितना साइकिल होगा? ऑब्वियसली दिस इंटू 900 करना है ना हमको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, राइट? 900/60, राइट? अब 900/60 है। अब ये तो हमने एज्यूम किया था कि हम लोग का साइकिल लेंथ है 60। अब कुछ भी हो सकता है, 50, 40, 45 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 60 हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? C, राइट? C लिख सकते हैं। सो 900 मिनट्स में कितना नंबर ऑफ साइकिल रिपीटेशन होगा? 900/C साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स, ओके। सो यही है, देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स इज दिस मच, 900/C। I इज नथिंग, I तुम्हारा ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, ऐसा। तो फर्स्ट ट्रायल का अगर तुम C1 60 सेकेंड ले रहे हो तो यहाँ पे 900/60 होगा। इज इट क्लियर? ये वाला, ये फॉर्मूला कैसे आया ये वाला, ओके। तो हम लोगों ने कितना नंबर ऑफ साइकिल्स आ रहा है 15 मिनट में वो ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये वाला आ गया, कितना होगा? कुछ भी एज्यूम करो, डिवाइड 900 से डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। अब करोगे क्या? सेकेंड है तुम्हारा, एज्यूम द टाइम हेडवे। हेडवे क्या था? हेडवे किसी को याद है क्या था? टाइम हेडवे है ये, स्पेस हेडवे था, एक था टाइम हेडवे। तो हेडवे का क्या था मतलब? टाइम हेडवे का मतलब क्या था कि एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन तुम ड्रॉ करो, ठीक है। अनिमेश का गाड़ी सपोज यहाँ से क्रॉस किया T1 टाइम में, T1 मतलब कुछ भी एक टाइम में T1 में वो क्रॉस किया, ठीक है। पीछे से सपोज रोनित का आ रहा था गाड़ी, ठीक है, उसने क्रॉस किया सपोज, इसने क्रॉस किया सपोज कितने बजे? T2 में, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम गैप, टाइम इंटरवल इन लोग के बीच में, ठीक, मतलब कितना कितना गैप के बाद एक एक गाड़ी आ रहा है, राइट? दैट इज द टाइम हेडवे, ठीक है। मतलब हेड टू हेड डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब इसका हेड यहाँ पे क्रॉस किया मतलब सपोज 10 बजे क्रॉस किया, पीछे से जो गाड़ी आ रहा था उसने आफ्टर 2 सेकेंड मतलब 10:02 में क्रॉस किया, तो दोनों के बीच का टाइम गैप कितना था? टाइम इंटरवल 2 सेकेंड करके था, ओके। तो दैट इज द हेडवे, टाइम हेडवे, ये है मेन फंडा टाइम हेडवे। अब आते हैं इंटरसेक्शन में टाइम हेडवे का कैसा यूज है, ओके। इंटरसेक्शन में होता क्या है कि तुम्हारा सपोज ये एक इंटरसेक्शन है, ठीक है, ऐसा एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पे तुमने इंटरसेक्शन दे दिया है, तुम लोग का यहाँ पे रेड सिग्नल था पहले, ओके, एंड दिस इज द स्टॉप लाइन, ओके। स्टॉप, देखना इंटरसेक्शन में एक लाइन रहता है, इसके पीछे सब गाड़ी को खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करता, इसके सामने भी आ जाते हैं। बेसिकली दिस इज फॉर कि इतना ही है, तुम लोग इससे सामने मत जाओ, राइट? दिस द स्टॉप लाइन। नाउ यहाँ पे देखो एक व्हीकल, सपोज यहाँ पे एक व्हीकल था, बैठा हुआ था, ठीक है, उसके पीछे भी एक व्हीकल था, ठीक है, उसके पीछे भी एक व्हीकल, ऐसा क्या हो जाता है? लंबा क्यों हो जाता है ना इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा यहाँ पे 10 बजे ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, पहले रेड था, पहले तुम्हारा यहाँ पे रेड था, ओके। अब 10 जब बजा, तुम्हारा सपोज यहाँ पे 10 बजे एकदम ग्रीन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो बहुत देर से तुम लोग यहाँ पे खड़े थे, तो क्या करोगे? अपना गाड़ी वाड़ी सब बंद करके रखोगे, राइट? तो जब अचानक से ग्रीन स्टार्ट होता है, अगर टाइमर नहीं दिया रहता है तो क्या होता है कि हम लोग ग्रीन जब स्टार्ट होता है तभी क्रॉस नहीं कर पाते, ओके। अगर टाइमर रहता है तो उससे पहले भी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइमर शो नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, ये बैठा हुआ था, अचानक से ग्रीन स्टार्ट हुआ, अब ये स्टार्ट करेगा फिर क्रॉस करेगा, ओके। तो सपोज ये 10 बजे स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट व्हीकल उसके सपोज 3 सेकेंड, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, रेट रिएक्शन, राइट, टाइम लगेगा, तो उसका ये क्रॉस कर रहा है कितना? सपोज आफ्टर 3 सेकेंड, ग्रीन जब स्टार्ट हुआ उसके 3 सेकेंड के बाद इसने क्रॉस किया, ओके। ऑब्वियसली
अब इसके पीछे वाला जो है वो भी थोड़ा टाइम लेगा इस वाले को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। ये जब क्रॉस करेगा तभी तो ये भी क्रॉस कर पाएगा। अब इसने क्रॉस किया कितना, उसके आफ्टर अनदर 3 सेकंड के बाद इसने भी क्रॉस कर दिया ये वाला, ठीक है। अब स्लोली स्लोली ये जो टाइम गैप हो रहा है, टाइम गैप क्या हो जाएगा, टाइम गैप मतलब कि एक व्हीकल जब ये वाला रेट क्रॉस करेगा, फिर दूसरा व्हीकल जब क्रॉस करेगा, तीसरा जब क्रॉस कर, वो जो टाइम गैप है इन दोनों के बीच में, वो स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, कम होता होता जाएगा। मतलब पहले 3.5 सेकेंड था, फिर 3 हो गया, वैसे करते करते फिफ्थ व्हीकल में जाके एक कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाएगा। मतलब इसके पीछे अब जितना भी व्हीकल है वो सेम टाइम गैप के बाद ये वाला लाइन को क्रॉस करता करता जाएगा। दैट इज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं दैट इज 2 सेकेंड। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2 सेकेंड इज दैट कांस्टेंट हेडवे। ओके, तो फर्स्ट व्हीकल को थोड़ा टाइम लगा, सेकेंड व्हीकल को उससे थोड़ा कम टाइम लगा, थर्ड व्हीकल को और उससे थोड़ा कम टाइम लगा, ठीक है। करते करते फिफ्थ व्हीकल के बाद एक कांस्टेंट हेडवे हो जाएगा। मतलब वो अब 2 सेकेंड के बाद ही सब लोग क्रॉस कर रहा है। ओके, इसको क्रॉस कर रहा है। मतलब फर्स्ट व्हीकल, उसके सामने वाला व्हीकल जब जाएगा उसके 2 सेकेंड के बाद ही उसके पीछे वाला व्हीकल क्रॉस करेगा ये वाला लाइन को। ओके, सो इफ वी एवरेज इट अप, इस सबको अगर हम लोग एवरेज कर देंगे हेडवे को, तो दैट वैल्यू इज सपोज टू बी टाइम हेडवे। ओके, ये जो है एवरेज टाइम हेडवे। ओके, अगर नहीं दिया रहता है तो वी हैव टू एज्यूम टू बी एज 2 सेकेंड, अगर इट इज नॉट प्रोवाइडेड। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ दूसरा क्या करना है, अब दूसरा हमको ग्रीन टाइम देना है। तो हम लोग को तो क्या करना है, इंटरवल ही तो डिजाइन करना है, राइट। तो कितना ग्रीन देना चाहिए ये हमको डिजाइन करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया कि ये 3 व्हीकल ही पकड़ के चलते हैं। ओके, 3 व्हीकल ही हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। मतलब ये 3 व्हीकल ही आएगा इंटरसेक्शन में, इन 3 व्हीकल के लिए हम लोग को ग्रीन टाइम देना है। अब कितना ग्रीन टाइम देना चाहिए, एनी आइडिया, कितना मिनिमम ग्रीन टाइम देना चाहिए? यहाँ पे ग्रीन सिग्नल कितना देर तक होना चाहिए मिनिमम, अगर ये 3 ठो व्हीकल ही है तो? ग्रीन मतलब क्या है, ग्रीन सिग्नल मतलब है तुम लोग जल्दी जल्दी खत्म करो, इतना लाइन लगा के खड़े मत रहो, तुम जल्दी जल्दी इसको क्रॉस करो, राइट। ग्रीन सिग्नल का मतलब तो वही है, इसलिए तो हम लोग दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी तुम इंटरसेक्शन को यूज करके चले जाओ, खत्म करो, जहां से यहाँ पे व्हीकल्स खड़ा ना रहे, राइट। ये तो हम लोग का मेन वही है, डिले को कम कराना है, राइट। तो मिनिमम ग्रीन टाइम कितना देना है, जितना टाइम इन तीनों व्हीकल्स को लगेगा इस स्टॉप लाइन को क्रॉस करने के लिए, दैट इज द मिनिमम ग्रीन टाइम वी हैव टू प्रोवाइड। ओके, क्लियर है ना? तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 10 बजे ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हम लोग का एवरेज हेडवे है 2 सेकेंड, मतलब हम लोग पकड़ के चलते कि सब व्हीकल का हेडवे है 2 सेकेंड। ओके, मतलब 2-2 सेकेंड के बाद ये वाला सब लोग व्हीकल क्रॉस करता करता जाएगा, ठीक है। तो 10 बजे जब ग्रीन स्टार्ट हुआ, सपोज ये अनिमेश था, ठीक है। अनिमेश ने आफ्टर 2 सेकेंड ये लाइन क्रॉस किया है, मतलब इसको इंटरसेक्शन से निकलने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। 2 सेकंड, मतलब 10:02 में ये क्रॉस कर लिया, ठीक है। पीछे अंकुश था, अंकुश ने भी क्या किया, अब ये वाला ही लाइन कितना बजे क्रॉस करेगा, हम लोग का एवरेज हेडवे क्या है 2 सेकेंड ही है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का गैप भी 2 सेकेंड है। ये अगर 2 सेकेंड के बाद क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली जब ये क्रॉस कर लेगा फर्स्ट व्हीकल, उसके 2 सेकेंड के बाद अंकुश भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो अंकुश कितने बजे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 10:04 में क्रॉस करेगा आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड। मतलब क्या बोलते हैं, अनिमेश जब क्रॉस किया तब बजा 10:02, अंकुश जब क्रॉस करेगा दैट इज आफ्टर अनिमेश, ठीक है, 2 सेकेंड आफ्टर अनिमेश। मतलब अनिमेश ने किया था यहाँ पे 10:02 में, अब ये वाला क्रॉस करेगा अंकुश 10:04 में, ठीक है। पीछे रोनित आ रहा था, उसको भी वही सेम टाइम लग रहा है, तो वो कितने बजे क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो जब ये क्रॉस करेगा तब कितना बज रहा होगा, ये थर्ड वाला व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल को 2 सेकेंड लगा, ठीक है। सेकेंड व्हीकल को उसके बाद का 2 सेकेंड लगा, थर्ड को भी उसके बाद का 2 सेकेंड ही लगेगा। फर्स्ट व्हीकल गया 10:02, मतलब 10 बजे ग्रीन स्टार्ट हो गया था, तो 10:02 में क्रॉस किया फर्स्ट ने, सेकेंड ने किया 10:04 में, थर्ड ने ऑब्वियसली करेगा 10:06 में, ठीक है।
टोटल टाइम कितना ग्रीन देना चाहिए, उसके बाद हमने रेड दिखा दिया, ठीक है। मतलब कितना बजे तक ये ग्रीन था, 10 बजे से लेकर 10:06 तक एटलीस्ट हमको ग्रीन देना है, जिससे कि पूरा ये 3 व्हीकल यहाँ पे क्रॉस कर ले, राइट। तो ये 6 सेकेंड कैसे आ रहा है, 6 सेकेंड कैसे आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया तुमने, ये 6 सेकेंड लगेगा इन सबको मतलब क्रॉस करने के लिए, उतना 6 सेकेंड के लिए ग्रीन शो होना चाहिए, कैसे आ रहा है? इफ वी नो द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इफ वी नो द हेडवे, कैन वी कैलकुलेट दिस ग्रीन टाइम? यस मैम, सबको एक साथ मिला के ही कैलकुलेट करना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना व्हीकल्स है, n 3 ठो है, ठीक है। और तुम्हारा हेडवे कितना था, ht कितना था, 2 सेकेंड था, राइट। So total green time to be provided for these three vehicles to cross the intersection or to मतलब इंटरसेक्शन से निकलने के लिए इसको कितना लगा, 6 सेकेंड। तो कैसे आ रहा है, ht into n, राइट, ht into n। तो ये वाला है क्या, ये वाला है तुम्हारा ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर n नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इतना क्लियर है ना? So this is what green time required for n number of vehicles, ठीक है। अब ये वाला n देखो, ये वाला n अगर तुम रोड जब एक्चुअली में जब इंटरसेक्शन करोगे तो 3 व्हीकल नहीं रहेगा, बहुत सारे इसके पीछे भी बहुत सारा व्हीकल रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला था रोड 1 के लिए सपोज n1 इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके, ड्यूरिंग कितना पीरियड, 15 मिनट्स में, ठीक है। तो 15 मिनट्स ट्रैफिक काउंट कितना है तुम्हारा, n1 vehicles in the road 1, ओके। तो अगर हम n1 into ht कर देंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, ये ग्रीन टाइम टू बी प्रोवाइडेड टू द n1 number of vehicles which will be coming for duration of 15 minutes, राइट। ये थोड़ा ध्यान से देखो, इजी है, कुछ इतना टफ नहीं है। n1 कितने टाइम में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, तो मतलब 15 मिनट में सपोज 50 व्हीकल आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 50 व्हीकल को मतलब क्रॉस करने के लिए टोटल ग्रीन टाइम कितना लग रहा है, इतना, ht into 50, ठीक है। अब 50 व्हीकल जब आ रहा है वो क्या एक ही साइकिल में कंप्लीट हो रहा है, 50 व्हीकल एक ही साइकिल में आ रहा है, एक ही साइकिल में इन सबको ग्रीन दे रहे हैं हम लोग, नहीं, क्योंकि वो कितना बार आ रहा है तुम्हारा, 15 मिनट्स में टोटल, ये है टोटल काउंट, 15 मिनट्स में टोटल काउंट इतना है, ठीक है। तो उतना टोटल व्हीकल्स के लिए टोटल ग्रीन है तुम्हारा कितना, इतना, ठीक है। ये है टोटल ग्रीन टू बी प्रोवाइडेड इन दी 15 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। अब 15 मिनट्स ड्यूरेशन में कितना व्हीकल्स आ रहा है, कितना साइकिल आएगा, पहले ये बोलो। अब 15 मिनट्स ड्यूरेशन में कितना साइकिल्स आ रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स ड्यूरेशन, कैसे हम लोगों ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, देखो देखो कौन सा स्टेप में कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ साइकिल्स, हाँ थर्ड में देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स कितना है वो, 900/c, राइट। इतना इज द नंबर ऑफ साइकिल इन 15 मिनट्स, ठीक है। एंड इतना इज द टोटल ग्रीन टाइम टू बी प्रोवाइडेड इन 15 मिनट्स, मतलब कि इतना ग्रीन टाइम कितना साइकिल में आ रहा है, इतना साइकिल में, मतलब इतना नंबर ऑफ साइकिल्स में टोटल ग्रीन है इतना, लेकिन हमको एक साइकिल का ही डिजाइन करना है, ठीक है। तो 900c नंबर ऑफ साइकिल्स में टोटल ग्रीन कितना है, ht into n1, ठीक है, या ht into n, ओके। तो ऑब्वियसली 1 साइकिल में कितना हो जाएगा, ht into n by 900/6c कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एक साइकिल में यह है इतना, साइकिल में इतना टोटल ग्रीन, ठीक है। तो एक साइकिल में कितना ग्रीन, ये वाला देखो, एक साइकिल में इतना ग्रीन, ht into n1, अगर रोड 1 है तो डिवाइडेड बाय 900/c1, c जो भी एज्यूम किए थे, ओके। अगर रोड 2 है तो ht into n2 डिवाइडेड बाय 900/c, 900/c कुछ नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 15 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। तो एक साइकिल में कितना ग्रीन होगा, इतना ग्रीन होगा, राइट। सो दिस इज द कैलकुलेशन, ये कैसे डिराइव किया, इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया ना?
देखो ये है तुम्हारा टोटल 15 मिनट्स ड्यूरेशन में कितना ग्रीन टाइम देना है, ठीक है। अब 15 मिनट्स ड्यूरेशन में है तुम्हारा 900/c नंबर ऑफ साइकिल्स, तो मतलब क्या है 900/c साइकिल्स में कितना ग्रीन टाइम है इतना, तो एक साइकिल में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय 900/c। ओके, तो ये हो गया ग्रीन टाइम एट रोड 1 सिंगल साइकिल में, और ये ग्रीन टाइम एट रोड 2 एंड द सिंगल साइकिल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज गिवन, A1 इज गिवन, A2 इज गिवन, मतलब एम्बर दे दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो लेट अस एज्यूम 3 to 4 सेकेंड हमको एज्यूम करना है। ओके, तो हम लोग देखो स्लोली स्लोली जा रहे हैं ना, रेड ग्रीन एम्बर ये सब डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो ग्रीन आ गया हम लोग का, एम्बर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। ओके, नाउ सिंस दिस वाज द ट्रायल साइकिल, ये हम लोग का एज्यूम, फर्स्ट हमने एज्यूम किया था कि इतना साइकिल है, अब हमको कैलकुलेट करना है। एज्यूम करके हम लोगों ने ग्रीन एम्बर सब निकाल दिया, अब हमको कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली में ग्रीन टाइम साइकिल लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब ये वाला कैसे आ रहा है, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए क्या है देखो, साइकिल में कितना क्या क्या होगा, ग्रीन एम्बर रेड होना चाहिए, तो एक साइकिल में कितना क्या क्या रहता है, ग्रीन एम्बर, ग्रीन इंटरवल, एम्बर इंटरवल, रेड इंटरवल रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया देखो, साइकिल इज इक्वल्स टू क्या है, G प्लस A प्लस R रेड, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देंगे G1 फॉर रोड 1 के लिए, ठीक है, फेज 1 या रोड 1 हम लोग बोल सकते हैं। फेज 1 के लिए ग्रीन है G1, एम्बर है A1 और रेड है R1, ठीक है। ये दोनों तो ऐड हो ही रहा है, देखो G1 A1 तो है ही। अब यहाँ पे G2 A2 आ रहा है इंस्टेड ऑफ R1, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, इसके लिए देखो तुम अगर अप्रोच ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली देखोगे ना, जब रोड 1 का तुम्हारा ग्रीन रहेगा, जब रोड 1 का तुम्हारा ग्रीन रहेगा, ठीक है, सपोज दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड सिग्नल देना चाहिए, तो ठीक है, ठीक है ना। इसीलिए जब इस फेज का हम लोग रेड निकाल रहे हैं या इस फेज का अगर हम ग्रीन निकाल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेड इज नथिंग बट दी, मतलब रेड ऑफ एनी फेज, रेड ऑफ फेज 2 या रेड ऑफ फेज 1 विल बी इक्वल्स टू ग्रीन ऑफ तुम्हारा फेज 2 प्लस एम्बर 2। ओके, मतलब यहाँ पे जब ग्रीन, यहाँ पे जब रेड रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो G1 A1 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दूसरा फेज का हम लोग क्या ऐड करेंगे, G2 A2 ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ R1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि ये है तुम्हारा G1 प्लस A1, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ R1 हम लोगों ने क्या कर दिया, R1 के जगह पर हम लोगों ने G2 प्लस A2 हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जब इस वाले का रेड रहेगा, ऑब्वियसली दूसरा अप्रोच में क्या हो जाएगा, उसका ग्रीन रहना चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जितना इसका रेड होगा उतना उसका ग्रीन और एम्बर मिला के देना चाहिए, ठीक है। इसलिए टोटल साइकिल लेंथ हो गया तुम्हारा G1 प्लस G2 प्लस A1 प्लस A2। अब कैलकुलेट करके चेक करो कि ये जो कैलकुलेशन किए थे हम लोग, सपोज दैट इज C डैश, एज्यूम किए थे C, अब ये दोनों सेम है कि नहीं है। ओके, अगर सेम है तो क्या करेंगे, इफ इट इज सेम देन वी विल गो फॉर द फेज डायग्राम, मतलब ठीक है, ओके, जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया वो सही है। ओके, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज द फेज डायग्राम। कितना ग्रीन है, ये है। अगर नहीं है देन वी विल डू द सेकेंड ट्रायल, मतलब हम लोग फिर से नया वैल्यू एज्यूम करेंगे C का, ठीक है, करके वो फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे टिल ये वाला वैल्यू और तुम्हारा जो एज्यूम वैल्यू सेम नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ओके, so this is the funda of the trial cycle method. Okay, is it clear? हाँ मैम। तो ये सब डाटा दे दिया है, N2 N1 क्या है, ठीक है। N1 तुम्हारा बोले थे 15 मिनट्स ट्रैफिक काउंट इन रोड 1, रोड 2, ग्रीन टाइम पर साइकिल इन रोड 1, ग्रीन टाइम पर साइकिल इन रोड 2, एम्बर 1, एम्बर 2, एवरेज टाइम हेडवे। ओके, सो
देखते हैं टाइम अगर होता है तो वी विल सी। ओके, जल्दी करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो द 15 minutes traffic count on the crossroad 1 and 2 during the peak hour are observed as 178 and 142 vehicles per lane। ठीक है, ये दे दिया है, N1 N2 दे दिया है। ओके, दिस इज N1, दिस इज N2। if the amber time required are 3 and 2 second for road 1 and road 2 respectively, मतलब A1 A2 ये भी दिया है। design the signal timing by tricycle method and assume that average headway, मतलब HT भी दे दिया है। ओके, तो जो जो लगेगा वो सब दे दिया है। so these are the given data। ओके, अब लेट अस गो टू द फर्स्ट ट्रायल। ट्रायल 1 में क्या बोले थे, हियर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब जो CI हम लोग एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या बोले थे, फर्स्ट 15 मिनट ट्रैफिक काउंट निकालो। N1 के लिए 178 दिया था, N2 142। ओके, एज्यूम ट्रायल साइकिल, जो भी फर्स्ट ट्रायल के लिए साइकिल लेंथ एज्यूम करो। सपोज C1 इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायल के लिए 50 सेकेंड हमने एज्यूम किया है। ओके, इन दिस केस अगर 50 सेकेंड है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द cycles in 15 duration? This was the formula, 900 by C। ठीक है, 900 by C कितना है, 50 सेकेंड से हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो देखो 15 मिनट में अगर 50 सेकेंड का साइकिल लेंथ है तो कितना बार होगा रिपीटेशन, 18 बार होगा। मतलब 18 बार वो सेम रिपीटेशन होगा, ग्रीन एम्बर रेड ग्रीन एम्बर रेड, ये 18 टाइम्स आएगा 15 मिनट ड्यूरेशन में। ओके, दूसरा क्या है, एज्यूम टाइम हेडवे और इट इज गिवन 2.5 सेकेंड दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये वाला फॉर्मूला HT इंटू N1 बाई 900 बाई C। देखो 900 बाई C कितना है, 18 आ रहा है। ओके, सो HT है 2.5, N1 है 178 एंड 900 बाई C ये 18 है, तो करके निकालो इतना आएगा। G2 का वैल्यू भी वैसे निकालो, 2.5 इंटू N2 इज 142 बाई 900 बाई C इज 18, इट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच। ठीक है, ये वाला तो दे ही दिया है, A1 3 सेकेंड, A2 2 सेकेंड। ओके, नाउ calculate the cycle length, G1 plus G2 plus A1 plus A2 करके देख लो 49.44, ये दोनों सेम है। ये 50 लिया था हम लोगों ने, एज्यूम किया था 50 और आ रहा है कितना 49.44। सो इज इट सेम? इज दिस सेम? नहीं, राइट? तो वी विल गो फॉर द सेकेंड ट्रायल। अब सेकेंड ट्रायल में क्या करेंगे, देखो ये कम हो गया है ना, तो वी विल रिड्यूस दिस एजम्पशन, जो भी एज्यूम किया था हमने अब कम करके करेंगे। तो लेट अस टेक ये सेम, ये तो सेम है, लेट अस एज्यूम 45 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ट्रायल में हमने 45 सेकेंड, फिर से वही कैलकुलेट करो। अब देखो ऑब्वियसली तुम्हारा साइकिल लेंथ कम गया, मतलब रिपीटेशन विल बी मोर, राइट? मतलब टाइम फिक्स्ड है, 15 मिनट फिक्स्ड है, ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, बट लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत और ढेर सारा और सारा इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा साइकिल्स। तो देखो और 2 इंक्लूड होगा, पिछले में 18 था, अभी 2 हो रहा है। ओके, 900 बाई 45 ये तो दिया गया है, सेम फॉर्मूला से निकालो। एक आ रहा है 22.25, 17.75, A1 इज दिस गिवन, नाउ कैलकुलेट। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है। ओके, दिस कैलकुलेटेड एंड एज्यूम इज सेम। सो यस, सो लेट अस गो टू द फेज डायग्राम। ओके, अब फेज डायग्राम क्या है, ऐसे ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है दोनों का सेम लेंथ का। ऑब्वियसली साइकिल लेंथ दोनों फेज का सेम ही होगा, तुम्हारा जितना ग्रीन रेड एम्बर मिला के जितना टाइम होगा, दूसरा अप्रोच से जो ग्रीन रेड एम्बर मिला के जितना टाइम होगा, दोनों विल बी सेम। ओके, सो साइकिल लेंथ इज 45 सेकेंड, 45 सेकेंड हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, राइट? और कैलकुलेटेड भी 45 ही आ रहा है, सो इट इज सेम। तो दिस इज फेज 1 फॉर रोड 1। ओके, तो इसमें ग्रीन कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, देखो पिछले वाले में 22.25 रोड 1 के लिए। ओके, और G2 के तुम्हारा रोड 2 के लिए 17.75, ये याद रखना। देखो ये है टोटल लेंथ कितना है, ग्रीन एम्बर रेड मिलाकर है 45 सेकेंड, इसका ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 22.25। ए इज गिवन, एम्बर इज गिवन 3 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड ग्रीन रहेगा, येलो रहेगा, तो रेड कितना रहेगा बोलो, रेड कितना लेंथ का होगा, कितना सेकेंड का होगा? टोटल 45 है, उसमें से ग्रीन इतना देना पड़ रहा है, उसमें से 3 सेकेंड हम लोग एम्बर दे रहे थे, रिमेनिंग विल बी योर रेड। तो ऑब्वियसली दिस रेड विल बी 45 माइनस 22.25 माइनस 3, दैट इज 19.75 सेकेंड हमको ग्रीन देना है। तो ये है फेज 1 का फेज डायग्राम। ठीक है, अब देखो रोड 1 में ये जब ग्रीन था, तो रोड 2 में क्या होगा, जितना देर ग्रीन था रोड 2 में क्या देना चाहिए सिग्नल?
पूछो तो बोलो यस मैम। क्या देना चाहिए सिग्नल? अगर रोड 1 में ग्रीन है तो रोड 2 में क्या देना चाहिए? रेड मैम। रेड, राइट? हाँ, तो ऑब्वियसली रेड रहेगा। तो जितना दूर ग्रीन था उतना दूर तो रेड रहेगा। और एम्बर है मतलब ये इसको क्या है, एम्बर इज बेसिकली फॉर दी क्या कॉशन के लिए कि तुम अगर एंट्री कर रहे तो जल्दी करो, क्रॉस कर लो। अगर तुम मतलब बहुत दूर से देख रहे हो कि ग्रीन खत्म होने वाला है, अब एम्बर स्टार्ट होगा, बहुत दूर है, रेड स्टार्ट हो जाएगा, राइट, चेंज हो रहा है, तब तुम रुक भी सकते हो। तो ये दिस इज फॉर कॉशन। तुम अगर एंट्री कर रहे हो तो जल्दी जल्दी करो, अगर बहुत दूर से आ रहे हो तो रुक जाओ, अब चेंज होगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तब रेड ही रहेगा। दूसरा वाला अप्रोच तब इन लोग को सोचने का टाइम दे रहा, मतलब तब तुम लोग रुको, अभी रुको, ठीक है, तो रेड ही रहेगा। तो टोटल रेड कितना रहेगा फॉर फेज 2? दिस प्लस दिस 25.25, 22.25 प्लस 3 25.25, ओके। अब एम्बर है कितना, 2 सेकेंड बोल दिया है, ठीक है। अब रिमेनिंग विल बी ये ग्रीन, तो टोटल है 45 सेकेंड। ये है तुम्हारा रेड 25.25, इतना है येलो, तो ऑब्वियसली ग्रीन विल बी 45 माइनस दिस इज दिस वन। और ये वाला चेक करके भी देख सकते हो, पिछले वाले में भी हम लोग का G2 का वैल्यू उतना ही आ रहा है, सॉरी देखो G2 का वैल्यू 17.75 ही आ रहा है, ओके। सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द फेज डायग्राम, इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, ओके। थोड़ा लेट हो गया है, ठीक हाँ है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। तो Thank डाउट you, ये ma'am. प्रैक्टिस करो, ऐसा वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस Okay. करो। नेक्स्ट वी विल गो फॉर अनदर मेथड, ओके, वेबस्टर मेथड, Okay, वो ma'am. हम लोग करेंगे, Okay मैम। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम।